Hello students and dear friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 3 from the chapter number 4 from our syllabus of class 11 physics. So the topic which we are going to start in this lecture is vector addition. The heading is vector addition. So my dear students, we are going to learn how to add vectors, how to add two or more vectors. Okay, so vector addition को हमें किस तरह से प्रोसीड करना है, उसके लिए पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं और फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि वेक्टर एडिशन व्हाई इट इज नेसेसरी. So my example is I am having two vectors. Displacement is a vector quantity, so I will take example of displacement only. So I am having two vectors, मतलब two displacements. Vector A, which is suppose it is 3 kilometers, yeah, it is 4 kilometers, and vector B, it is 3 kilometers. I am having two vectors A and B, और दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है. A 4 kilometers and B is 3 kilometers. Okay. Now I will add these two vectors with different orientations. सबसे पहला ओरिएंटेशन क्या है? फर्स्ट केस, both in same direction. दोनों सेम डायरेक्शन में है. सपोज both towards east, दोनों ईस्ट वाली डायरेक्शन में है. समझ लो. The first case, if both are towards east, then A is 4 kilometers, and then B is 4 plus 3. How much is this? 7 kilometers. Okay, so it comes out to be 7 kilometers. So यहाँ पर magnitude of, I am interested in magnitude of A plus B is 7 kilometers, and no doubt the direction of the resultant vector will be towards east only. Okay, डायरेक्शन में भी हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का जो भी डायरेक्शन आएगा वो ईस्ट की तरफ ही आएगा. नंबर 1 केस. नाउ द सेकंड केस, both in opposite directions. Suppose A is towards east and B is towards west. A का डायरेक्शन ईस्ट वाला है और B का डायरेक्शन वेस्ट वाला है. So in this case, if A is towards east इधर होगा ना, आपको याद होगा हम पेपर पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट we draw it like this. Okay, north, south, east and west इस तरह से बनाते हैं पेपर पे. And students, you must know that out of these two lines, एक लाइन है नॉर्थ साउथ लाइन और एक लाइन है ईस्ट वेस्ट लाइन, इनमें से कौन सी लाइन वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड आसमान की तरफ और वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, कौन सी लाइन इनमें से वर्टिकल होती है और कौन सी हॉरिजॉन्टल होती है? आपको पता होना चाहिए. डू यू नो? आपका आंसर नॉर्थ साउथ लाइन इज वर्टिकल लाइन अगर है, देन यू आर रॉन्ग. एंड इफ योर आंसर इज ईस्ट वेस्ट वाली लाइन फिर वर्टिकल लाइन होगी, देन यू आर डूइंग समथिंग very very wrong. But all these four directions, north, south, east and west, all these four directions, they are along the horizontal surfaces only, along the horizontal surface of earth. Okay, अब देखो ना, north, south, east, west, ये सब horizontal directions ही होते हैं. Okay, means these two lines, north, south line and east, west line, they are along the horizontal surface of earth only. अब इससे इस तरह से आइडिया ले सकते हैं. सपोज इंडिया का मैप तो सबने थोड़ा सा आइडिया में ले लेता हूं. इंडिया का मैप से इधर कश्मीर है, इधर आसाम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह होता है. ठीक है, नीचे केरला है हमारा.
तो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, इधर गुजरात। सो हम क्या बोलते हैं इंडिया के मैप पर कि जम्मू एंड कश्मीर इज टुवर्ड्स नॉर्थ, केरला इज टुवर्ड्स साउथ, यही बोलते हैं ना, एंड अरुणाचल प्रदेश इज टुवर्ड्स ईस्ट और गुजरात इज टुवर्ड्स द वेस्ट। क्या इनमें से कोई डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन है? अगर नॉर्थ वर्टिकली अपवर्ड होता तो क्या जम्मू एंड कश्मीर फिर तो आसमान में होता है। तो ये चीज क्लियर करनी है हमें कि बहुत लोगों को डाउट होता है कि नॉर्थ साउथ लाइन वर्टिकल लाइन होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ साउथ लाइन इज आल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग द अर्थ सरफेस एंड ईस्ट वेस्ट लाइन इज आल्सो a horizontal line along the earth surface and these two are perpendicular to each other. These two are perpendicular to each other, always remember this. And the third line which is perpendicular to both these lines will be vertically upward and vertically downward, a vertical line which is towards the sky and below towards the center of the earth. वो थर्ड डायरेक्शन होता है। ओके, तो अभी हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। A टुवर्ड्स ईस्ट और B टुवर्ड्स वेस्ट, सो B फिर यहां से टुवर्ड्स वेस्ट जाएगा। अब A तो इधर है 4 किलोमीटर और B वापस 3 किलोमीटर, सो इनको ऐड करने पर क्या आ रहा है इस बार, 4 इधर जाएगा 3 वापस आएगा, ओनली 1 किलोमीटर की मैग्नीट्यूड आ रही है। मैग्नीट्यूड को हम इस ब्रैकेट में शो कर देते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस, ये कहलाता है मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B। ओके, एक और केस लेते हैं, थर्ड केस। इस बार A का डायरेक्शन वही ईस्ट वाला है और B फिर जाता है उसके बाद नॉर्थ की तरफ। B डिस्प्लेसमेंट फिर वो कवर करता है नॉर्थ की तरफ। ओके, A पहला डिस्प्लेसमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट P ऑब्जेक्ट पहले A डिस्प्लेसमेंट कवर करता है फिर B डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ओके, तो A डिस्प्लेसमेंट पहले वो 4 किलोमीटर ईस्ट जाता है, देन इट मूव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इस बार 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, तो ईस्ट तो इधर होगा ना 4 किलोमीटर और नॉर्थ इधर होगा 3 किलोमीटर। इस बार यहां से यहां तक दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट बोले तो एडिशन क्या है? रिजल्ट का मतलब ऐड होता है, एडिशन। वेक्टर रिजल्ट मतलब वेक्टर एडिशन, तो एडिशन इन दोनों का क्या होगा, ये होगा यहां से यहां तक इतना, ये रिजल्ट है A और B का। एंड इफ दिस इज 4 दिस इज 3 you can apply Pythagoras because this angle is 90 degree and you will find that this is 5। तो इस बार जो A plus B का मैग्नीट्यूड आएगा वो 5 किलोमीटर आएगा। Now you can observe carefully in each and every case the magnitude of A plus B, मतलब दो वेक्टर्स हैं तो वही 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, लेकिन दोनों वेक्टर्स का हर केस में अलग आंसर आता है। वेक्टर एडिशन 7 किलोमीटर मैग्नीट्यूड, वेक्टर एडिशन 1 किलोमीटर मैग्नीट्यूड, वेक्टर एडिशन 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन भी अलग अलग ही आ रहा है सब केसेस में। तो आप यहां पर देखें ये एडिशन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? Actually, this addition depends upon the direction of the vector. As the direction is changing, and we are changing the direction of B only. B अभी towards east था, अब towards west हो गया, तो magnitude is changing. Now B is towards north, magnitude has again changed. So it means magnitude will change if we add two vectors of the same magnitude but along the same direction. And in the same manner, if two vectors along the same direction are there and the magnitude is changing, then also the result will change. Okay, so it means when we add vector quantities we have to consider their direction. जब हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं हमें उनका डायरेक्शन कंसीडर करना होता है, और ये तीनों केसेस आपको यही दिखा रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में किस तरह से आंसर अलग अलग आ जाता है। That is why we need vector addition. That is why we need vector addition. और अब vector addition कैसे अपने आंसर्स देगा ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। Okay? If you wish to copy down these examples, you may pause the video over here and you may copy down these examples, and then we are going to proceed towards the rules for vector addition. And now students, we are going to learn the rules for vector addition, या we can say the laws of vector addition. पहले हम दो वेक्टर्स को ऐड करने का लॉ देखेंगे क्या है, कैसे हम
किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। किस लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे? द नेम ऑफ द लॉ इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट्स द नेम ऑफ द लॉ? ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज द सब हेडिंग टुडे। Triangular law of vector addition. Now, how to follow this law? देखते हैं कैसे इस लॉ को हम फॉलो करेंगे। Suppose I am having two vectors, a vector a and vector b. These are the two vectors given to me, and I have to add them, and then after adding them, I have to give the final magnitude of the addition of these two vectors and the direction of the resultant of these two vectors. इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड भी देना है और उस रिजल्ट का डायरेक्शन भी बताना है कि अब डायरेक्शन किधर है। इन दोनों के एडिशन के रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है वो भी बताना है। ये सब चीजें हमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करके देगा। Triangular law of vector addition, what is the statement? The statement is, listen carefully to the statement, okay? The statement is, if the two vectors represent two sides of a triangle taken in same order. I will take a pause over here. यहां तक जो मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाते हैं। If two given vectors represents two sides of a triangle taken in same order, ये डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, ये दोनों जो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। और जब आप इन दोनों वेक्टर्स को दोबारा कॉपी कर रहे होंगे तो मेक श्योर कि दोनों वेक्टर्स उतनी ही लेंथ के उसी ही डायरेक्शन में आपको दोबारा कॉपी करना है। ओके, ऑफ द सेम लेंथ एंड अलोंग द सेम डायरेक्शन। इनका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, इनकी लेंथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लेंथ मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ओके, and now the second vector, this one, I have to copy it here such that the tail of the second vector will touch the head of the first vector. The tail of the second vector will touch the head of the first vector. Okay, so मुझे इसको यहां ऐसे कॉपी कर लेना है। ये वेक्टर यहां पर like this, यहां कॉपी हो जाएगा without changing its length and without changing its direction. तो ये इसका डायरेक्शन है और उतनी लेंथ का मैं वेक्टर बना लेता हूं like this. Let me make sure that it is of the same length. Okay, it is of the same length. So now these are the two vectors. They are representing two sides of a triangle in the same order. What is the meaning of same order? Same order का मतलब ये है, अगर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर A का हेड आता है तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर B का भी हेड आएगा। B का हेड आप इधर नहीं इधर ही रखें। Okay, taken in the same order. Now the remaining part of the statement. So let me complete it. If the two vectors represents two sides of a triangle taken in the same order, then the third side of the triangle taken in the opposite order will represent the vector addition of the two vectors both in magnitude and direction. अब इस ट्रायंगल की तीसरी साइड, the third side is this one, taken in opposite order. Opposite कैसे? देखो, सेम ऑर्डर हो जाएगा, इधर हेड तो तीसरे का हेड इधर बनेगा। दिस विल बी द सेम ऑर्डर। इससे उल्टा कर देना है तो हेड इधर बनाएंगे आप। ठीक है, टेकन इन द opposite order will represent the vector addition of these two vectors. मतलब ये हो गया है a plus b, both in magnitude and direction. मैग्नीट्यूड में भी कितनी तो लंबाई होगी इसकी मैग्नीट्यूड, लेंथ, एंड डायरेक्शन हम डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट वेक्टर से कितने एंगल पर है। लेट दिस एंगल इज अल्फा, इट इज अलोंग द एंगल अल्फा फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर a. ओके, ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन अल्फा। इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है और इसका डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है। बट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने से पहले हम ये सीखेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को कैसे मार्क करते हैं और कैसे पहचानते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है।
आप खुद ट्राई करें, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बताओ ए एंड बी के बीच में एंगल क्या होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैं मार्क कर देता हूं, दिस वन और 2, व्हिच इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स। जो स्टूडेंट्स आंसर 2 बोल रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट, जैसे भी उन्होंने बोला हो, सोचकर बोल रहा हो या तुक्का मारा हो, बट दे आर राइट। एंड एंगल 1 जिन्होंने सोचा था वो रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है और जिन्हें ये पता हम राइट है मतलब क्यों है वो भी सुनते हैं, ठीक है। देखो, अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना होता है तो दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर लो। ए है, बी की टेल इसकी टेल पर लगाओ, ए बी, टेल टू टेल ज्वाइन हो गए, दोनों की टेल एक साथ है। अब ये वाला एंगल जो इन दोनों के बीच में है, दिस इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, और ये एंगल 2 ही है। देखो आप अगर इसको यहां लगाओगे जैसे मैंने वहां लगाया हुआ है, सो दिस 2 इज कोरेस्पॉन्डिंग विद दिस वन ना, तो ये भी 2 है ये भी 2 है, ओके। दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल 1 is not the angle between the two vectors. Suppose theta is the angle between two vectors, so I can write theta over here. Okay, now theta is the angle between the two vectors. अब इसमें हम मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। सी क्या है? सी इज a प्लस बी, मैं a प्लस बी को c बुलाऊंगा। What is C? C is A plus B. Okay? Then इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए बेटा लेट अस नेम दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं P Q R, और हमें यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है A को आगे बढ़ाकर, A प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, और फिर इस वेक्टर A की लेंथ पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। दिस इज 90 डिग्री एंगल, ओके, दिस इज 90 डिग्री एंगल। अब आप चेक करेंगे एक बार, ये बी है, इसके कंपोनेंट्स लेने हैं, याद है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यू के कंपोनेंट्स क्या करे थे आपने, यू cos थीटा यू sin थीटा, जिधर एंगल थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट जाता है, इफ यू रिमेंबर इट, वही चीज करनी है। देखो इसका कंपोनेंट इधर, दिस इज एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट इसका, दिस मच ऑफ कंपोनेंट, दिस इज b cos थीटा, और जहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है वो पॉइंट है m, तो qm इज b cos थीटा, ये qm की वैल्यू होगी, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, इसका साइन कंपोनेंट ये होगा, दिस इज द साइन कंपोनेंट, ठीक है। अरे इधर एंगल थीटा है तो इधर तो cos, और दूसरी साइड क्या जाएगा, दिस इज b cos थीटा, और इधर b sin थीटा, तो b sin थीटा आप यहां बनाओ या यहां बनाओ, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ओके, इट इज वन एंड द सेम थिंग, b sin थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, जिनको ये कंपोनेंट्स लेने समझ नहीं आ रहे हैं, आई विल एडवाइज टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप लास्ट क्लास को एक बार फिर देखें, उसमें हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे लेते हैं ये टॉपिक क्या हुआ है, ठीक है। और जिन्होंने टॉपिक देखने के बाद भी भूल चुके हैं वो भी एक बार फिर से देख लेंगे, ओके। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा कि हमने कंपोनेंट कैसे लिए बी के, b cos थीटा एंड b sin थीटा, तो आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इट इज बेटर कि आप पहले कंपोनेंट ढंग से सीख कर आए। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि हर क्लास को अच्छे से करना है, नोट्स बनाकर करना है। नोट्स बनाए थे अगर तो वीडियो क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, फिर रजिस्टर के पेजेस को टर्न कीजिए और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखिए, विद इन अ मिनट वापस आएंगे, ओके। So after taking these components b cos theta and b sin theta, now I am having a triangle, ध्यान दीजिए ट्रायंगल PMR, this triangle is having an angle of 90 degree at point M, okay। इस ट्रायंगल के पास 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा सकते हैं, इसीलिए आपको ये कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकें। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दिस इज बेस, बेस कहां से कहां तक है, p से n तक, और परपेंडिकुलर है r से n तक, तो हमें पाइथागोरस लगाना है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल
PMR, कौन से ट्राइंगल में लगाया? ट्राइंगल PMR में लगाया। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? बॉडी PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, नाउ दिस PR तो इस वेक्टर की लेंथ है ना, C वेक्टर की, तो C वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं C से ही डिनोट करूंगा, मैं लिख सकता हूं इसको C स्क्वायर। नाउ PM इज दिस मच। देखो PM के दो पार्ट हैं, P2Q जो कि A है, A का मैग्नीट्यूड A हो जाएगा, और फिर दूसरा QM जो कि B cos थीटा है। तो टोटल क्या हो जाएगा यहां से यहां तक? A plus B cos थीटा, A plus B cos थीटा इज P2M। ओके, सो PM स्क्वायर की जगह क्या राइट? A plus B cos थीटा और ऊपर स्क्वायर लग रहा है RM, ध्यान दो RM पर, R to M, दिस इज B sin थीटा, तो RM के प्लेस पर आई कैन राइट B sin थीटा का होल स्क्वायर। नाउ वी विल ओपन दिस फॉर्मूला, याद है ना आपको a plus b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, या x plus y का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, इसी प्रॉपर्टी से इस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे। c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ चेक दीज टू टर्म्स, दोनों में b कॉमन है, b स्क्वायर कॉमन है इनफैक्ट, तो b स्क्वायर को कॉमन लेंगे यहां से, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा अंदर जाएगा ब्रैकेट में, प्लस sin स्क्वायर थीटा यहां से ब्रैकेट में रह जाएगा, प्लस 2ab cos थीटा। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, देखो याद करो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से प्रॉपर्टी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इनटू 1, b स्क्वायर रह जाएगा, तो c स्क्वायर आ गया है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू 1, b स्क्वायर रह गया, प्लस 2ab cos थीटा। हमें तो c चाहिए, c स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, वेक्टर c का मैग्नीट्यूड c होता है, तो हमें c चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो फार्मूला विल बी a square plus b square plus 2ab cos theta under the root, this is the magnitude of a plus b, a plus b का मैग्नीट्यूड है। ओके, a और b को ऐड करने के बाद ये मैग्नीट्यूड आएगा। जब भी आपको दो वेक्टर्स दिए हो ऐड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जो आपने आज 3 केसेस मेरे साथ की थी क्लास में, उन तीनों केसेस में आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको तीनों केसेस के आंसर मिलेंगे। पहले केस का 7, दूसरे केस का 1 और तीसरे केस का 5। देखो पहले वाले केस में दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है। अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, याद करो पैरेलल वेक्टर्स, एंगल उनके बीच में 0 डिग्री होता है, यहां 0 लगाओ, cos 0 1 होता है। सोल्व करके देखना, आंसर विल बी 7। आपको सोल्व करना है ये। ओके, आप वीडियो पॉज करें, यहां पर सोल्व करके चेक करें कि क्या 7 आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड केस में एंगल अपोजिट हो, वेक्टर्स अपोजिट हो गए, ए इधर बी इधर, ईस्ट एंड वेस्ट। अपोजिट वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। आप यहां थीटा की जगह 180 लगाएं, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। सॉल्व करें, यू विल गेट आंसर 1। अभी चेक करो, वीडियो पॉज करो फिर से और अभी चेक करो कि आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, थर्ड केस में दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है, यहां पर cos 90 लगाओ, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सॉल्व करके देखो कि आंसर 5 आता है कि नहीं आता है। फिर से वीडियो पॉज करो, चेक करो बेटा, चेक करो, मैं बोल रहा हूं आपको, वीडियो पॉज करके चेक करो और उस आंसर को मैच करो जो आज की आपने स्टार्टिंग में किया था आज के लेक्चर में। डन। इसी तरह से तीनों आंसर्स आप चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से वेक्टर एडिशन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला काम करता है। ओके, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अभी मेरे को एक काम और करना है, मुझे डायरेक्शन भी निकालना है। आई नीड टू फाइंड आउट डायरेक्शन, द सेकंड पार्ट, क्योंकि किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग डायरेक्शन। अब यहां पर डायरेक्शन बोले तो मुझे अल्फा एंगल निकालना है इस सी वेक्टर का ए वेक्टर से कितना एंगल है। मींस आई एम फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेक्टर। पहले वेक्टर से डायरेक्शन बता रहा हूं मैं। ओके, हम दूसरे वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, बट यहां पर हम पहले वेक्टर से निकाल रहे हैं।
So alpha is the angle of resultant vector C from डायरेक्शन ऑफ ए। ओके, और देखो ध्यान से, फिर से वही ट्रायंगल पीएमआर। पीएमआर ट्रायंगल में tan अल्फा लिखेंगे। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर आरएम और बेस इज पीएम। तो आई विल राइट tan अल्फा आरएम अपॉन पीएम। कौन से ट्रायंगल में लिखा है वो भी तो बता दो। इन ट्रायंगल पीएमआर, इन ट्रायंगल पीएमआर, यहां से tan अल्फा लिखा है। आरएम अपॉन पीएम, चेक करो आरएम अपॉन पीएम क्या आएगा। tan अल्फा, आरएम की वैल्यू है b sin थीटा और पीएम की वैल्यू है a प्लस b cos थीटा। देखो यहां पे लिखी थी पीएम की वैल्यू आपने a प्लस b cos थीटा और आरएम की वैल्यू भी यहां लिखी थी b sin थीटा। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज वहां भी लिखी हुई हैं, a प्लस b cos थीटा। इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हम अल्फा सॉल्व करते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो हम फिर बताते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर a। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम या विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर a, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर a, पहले वाले वेक्टर से है ये डायरेक्शन, ये याद रखना है आपको। दिस फॉर्मूला इन सम ऑफ द बुक्स इज आल्सो रिटन लाइक दिस। अगर डायरेक्टली अल्फा को लिखना है तो ये tan जब इधर आएगा तो ये tan इधर आने के बाद लिखा जाता है tan इनवर्स। tan इनवर्स कह सकते हो कि पावर -1, इसको बोलते हैं tan इनवर्स। 10 टू द पावर -1 नहीं बोलोगे, tan इनवर्स। और फिर बाकी देखो tan इधर आ गया, बाकी फॉर्मूला लिख दो वही b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट रिमेंबर कि इट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस फॉर्मूला। आप कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से करें, अल्फा निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि बुक्स में लिखा है इस तरह से, तो यू शुड नो कि ऐसे क्यों लिख दिया आपने। ओके, सो ये हमारा कैलकुलेट हुआ मैग्नीट्यूड और उसके बाद में डायरेक्शन। तो आपका जो सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकलेगा और अगर उसका डायरेक्शन भी बताना है आपको किसी क्वेश्चन में तो उसका डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर के रिस्पेक्ट में आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके एंगल बता सकते हैं कि वो इस पर्टिकुलर एंगल में है फर्स्ट वेक्टर से। डन। सो स्टूडेंट्स, प्लीज कॉपी डाउन दिस डेरिवेशन विद द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ इसलिए बोला है क्योंकि हमने ट्रायंगल फॉर्म किया है। ओके, and now students, after completing this triangular law of vector addition, we are going to learn one more law for adding two vectors। दो वेक्टर्स को ऐड करने का एक और लॉ हम करने वाले हैं and that is known as parallelogram law of vector addition। So the next subheading is parallelogram law of vector addition। ओके, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखा है ट्रायंगल की हेल्प से। पैरेललोग्राम लॉ से आप दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखोगे एक पैरेललोग्राम की हेल्प से। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है इसके लिए? देखो वही दोनों वेक्टर्स हैं a एंड b जो हमें ट्रायंगुलर लॉ से ऐड करने थे अभी थोड़ी देर पहले। अब इन्हीं दोनों वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करने वाले हैं। द स्टेटमेंट इज, लिसन केयरफुली टू द स्टेटमेंट। If two vectors resemble two adjacent sides of a parallelogram, if two vectors resembles two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through the point of intersection, passing through the point of coincidence of the two vectors, जहां पर वो दोनों वेक्टर्स मिलते हैं इस पॉइंट पर, वहां से पास होने वाला डायगोनल, then the diagonal passing through the point of coincidence of the two vectors represent the addition of two vectors both in magnitude and direction। किस तरह से होगा ये देखो, अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिजेंबल करेंगे तो वेक्टर a एंड वेक्टर b, वेक्टर a
वैसे ही कॉपी करना है, उतनी लेंथ उतना डायरेक्शन। ओके, और बी इस बार सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के टेल पर लगाएंगे आप, जब भी तो पैरेललोग्राम बनेगा। तो लेंथ एक ही हो गई, सेकंड वेक्टर की टेल विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर बी, बी का डायरेक्शन ये है, यही रहेगा। दोनों की टेल टेल मिला दी आपने। अब दोनों वेक्टर्स इस पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं, ये इनका कॉमन पॉइंट है। ओके, नाउ दीस आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर आपको ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है तो आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, इसके पैरेलल ये वाली साइड होती है और इसके पैरेलल साइड ये वाली आप बनाएंगे। ठीक है, सो इफ दिस इज वेक्टर ए, तो यहां से यहां तक दिस ग्रीन लाइन इज आल्सो वेक्टर ए, एंड इफ दिस इज वेक्टर बी, दिस इज आल्सो वेक्टर बी, क्योंकि ये तो कॉपी किया है हमने एज इट इज विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायरेक्शन सेम होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, मतलब डायरेक्शन सेम होता है। ओके, एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा। ओके, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब इसके साथ आप वो डायगोनल मार्क करेंगे जो डायगोनल इन दोनों के कॉमन पॉइंट से पास होता है। देखो, एक डायगोनल ये होगा और एक ये होगा। व्हिच वन? दिस वन, which is passing through the common point of the two vectors. So ये डायगोनल हम बना लेते हैं। This diagonal will represent the addition of the two vectors, मतलब ये a plus b है और इसको मैं c से डिनोट करने वाला हूं। ओके, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो दिस फिगर p q r, ट्रायंगल p q r तो वही ट्रायंगल है जो भी ट्रायंगुलर लॉ में सीखा था। यू कैन चेक इन योर रजिस्टर्स। ओके, सो अगर ये ट्रायंगल वही ट्रायंगल p q r है तो आप इसमें फिर से वैसे ही प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस पॉइंट विल बी m, दिस कंपोनेंट, अगर दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, सो दिस कंपोनेंट इज b cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज b sin थीटा। सेम बन गया ना सब कुछ। उसी ट्रायंगल PQR में आप पाइथागोरस लगाएंगे और फिर से वापस वही डेरिवेशन दोबारा आपको करना है पैरेललोग्राम लॉ के नीचे। तो अगर आपके स्कूल्स में एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो वेक्टर्स का ऐड करके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ, तो ट्रायंगुलर लॉ से इस डेरिवेशन को करोगे। और पैरेललोग्राम लॉ से क्वेश्चन आता है तो पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाने के बाद में फिर आप इस डेरिवेशन को एज इट इज दोबारा करेंगे। सो डेरिवेशन के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। यहां पर एल्फा डायरेक्शन कहां मार्क करोगे आप? जैसे पहले मार्क किया था ट्रायंगुलर लॉ वाले में, वैसे यहां पर आप दिस इज द डायरेक्शन अल्फा फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ए। फर्स्ट वेक्टर ए प्लस बी में जो पहले लिखा है उसको फर्स्ट वेक्टर बोलते हैं। अगर आप बी प्लस ए लिखोगे तो बी पहला वेक्टर कहलाएगा। ओके, सो सेम डेरिवेशन, प्लीज कॉपी डाउन दिस वंस मोर। दोबारा कॉपी करें बेटा, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये दोबारा फिर से कॉपी करना पड़ रहा है आपको। दोबारा कॉपी करें, आपको याद हो जाएगा दोबारा कॉपी करने से अभी। ओके, and now students we are moving towards the last part of this lecture. Last part of the lecture में हम क्या करने वाले हैं? We will do polygonal law of vector additions. देखो, अभी आपने ट्रायंगुलर लॉ सीखा, आपने पैरेललोग्राम लॉ सीखा। मैथमेटिकली दोनों लगभग सेम थे, लगभग क्या एग्जैक्टली सेम थे। ओके, ये दोनों लॉज दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं ये बताते हैं हमको। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स आपके पास हो, उन्हें कैसे ऐड करोगे? उनका एडिशन सीखने के लिए हमारे पास है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है हमारे पास? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So basically polygon law of vector addition is for adding 3 or more vectors. 2 तक तो ट्रायंगुलर या पैरेललोग्राम भी हो जाता है। ठीक है, 3 या उससे ज्यादा वेक्टर्स अगर आपके पास हैं तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास 5, वी आर हैविंग 5 वेक्टर्स। सपोज वी आर हैविंग 5 वेक्टर्स, तो रूल क्या है? रूल ये है कि जितने भी वेक्टर्स आपके पास हैं
आपको सेकंड वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पर आएगी। हर बार नेक्स्ट वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करेंगे कि उसकी टेल उससे पहले वाले वेक्टर के हेड पर लग जाए। सपोज मेरे पास वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में ए, अब वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को इस तरह से ड्रॉ करना है, उसका डायरेक्शन आपको कांस्टेंट रखना है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। जैसे ए और बी ट्रायंगल लॉ में आपने बी का डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो उसको एज इट इज कॉपी कर लिया, बिल्कुल वैसे ही कॉपी करने होते हैं सारे वेक्टर्स। बी का टेल ए के हेड पर लगाएंगे और बी का जो भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है उसको बनाएंगे। दिस इज बी। सपोज तीसरा वेक्टर है सी, तो उसका टेल बी के हेड पर लगाएंगे और सी को भी उसकी मैग्नीट्यूड के साथ बनाएंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वेक्टर इज डी। सपोज उसका डायरेक्शन इधर है, उसका भी आपने मैग्नीट्यूड बना लिया। और द फिफ्थ वेक्टर इज ई। सपोज ई इज लाइक दिस, सो एवरी नेक्स्ट वेक्टर का टेल प्रीवियस वेक्टर के हेड पर लगना है। देखो सी का टेल बी के हेड पर है, डी का टेल सी के हेड पर है और ई का टेल डी के हेड पर है। तो इफ सपोज आई एम हैविंग 5 वेक्टर्स, इन पांचों वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ द गिवन वेक्टर्स represent adjacent sides of a polygon taken in same order, adjacent sides of a polygon taken in same, देखो सबका सेम ऑर्डर है, इधर ही एरो आ रहा है सबका, ठीक है, taken in same order, then the closing side of the polygon, अब closing side को किसे वो कहेंगे? वो साइड जिस साइड को बनाने के बाद ये पॉलीगन क्लोज हो जाए। ये कहां से मिलती है? पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर की हेड मिलाकर मिलेगी ये साइड आपको। Then the closing side of the polygon taken in the opposite order, इसका ऑर्डर अपोजिट कर लो, सेम ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एरो इधर बनेगा, अपोजिट ऑर्डर कर देते हैं एरो इधर बन जाएगा। Taken in the opposite order represent the addition of all these vectors both in magnitude and direction. So इन सभी वेक्टर्स का एडिशन ये अकेला रिप्रेजेंट करेगा a plus b plus c plus d plus e। मान लो ये रिजल्टेंट r है, both in magnitude as well as direction। ओके, सो दिस आर रिप्रेजेंट्स इन सभी वेक्टर्स का एडिशन, और इसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला ही लिखना है। इसमें ऐसी मैथमेटिक्स की डेरिवेशन नहीं है जैसा ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में हुआ करता था। ओके, बट ये हम कैसे लिख सकते हैं? बेटा ये भी ट्रायंगुलर लॉ से आया है तरीके से, आप ध्यान से देखेंगे अगर तो मैं आपको समझा पाऊंगा। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही यूज करेंगे, और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम दो वेक्टर्स के साथ डील करते हैं। वी डील विद द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ओनली। सो आपके पास जितने भी वेक्टर्स पॉलीगन में हैं, अभी हमारे पास 5 वेक्टर्स का एग्जांपल है, आप 2 एट अ टाइम ऐड करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 एट अ टाइम ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में नेक्स्ट वेक्टर को ऐड करेंगे एंड प्रोसीड इन दिस मैनर until we obtain this result a plus b plus c plus d plus e। देखो किस तरह से। सबसे पहले दो वेक्टर्स a और b को ऐड करते हैं ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग। ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग these two vectors are in the same order of the and they represent two sides of the triangle। तो थर्ड साइड, this third side will represent the sum of a and b, तो ये हो जाएगा आपका a plus b। ओके, दो वेक्टर्स ऐड हो गए a plus b। डन। जो वेक्टर्स हमने ऐड कर लिए उन्हें हम यहां से हटा देते हैं, मैं उनको डॉटेड कर देता हूं। जो वेक्टर्स ऐड होते जाएंगे वो मैं डॉटेड कर दूंगा, मतलब वो अब हमारे पास नहीं है, हमें उनका रिजल्ट मिल चुका है। डन। सो a plus b डन, उनका रिजल्ट है a plus b। अब इस रिजल्ट के साथ नेक्स्ट वेक्टर ऐड करो यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ओनली। तो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। अब आप इनके ऊपर ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे तो these two sides are representing the two sides of a triangle in the same order. Third side of this triangle taken in the opposite order will represent the sum of these two. तो a plus b और plus c, a plus b plus c। Okay, now we have added vector c also। c को भी डॉटेड कर दिया, c को भी मैंने डॉटेड कर दिया है। डन। c को भी डॉटेड कर दिया और इसे भी आप हटा सकते हैं यहां से। Now we will add d with the a plus b plus c। a, b और c का जो रिजल्ट आ चुका है उसमें d को ऐड करोगे। अगेन the two
vectors are this and this representing two sides of a triangle in the same order. The third side of the triangle is this one. Taken in the opposite order will represent the sum of vector D and vector A plus B plus C. तो ये हो जाएगा A plus B plus C plus D. ओके, D भी ऐड हो चुका है, उसको भी डॉटेड कर देते हैं, वो भी हमारी पिक्चर से हट जाएगा. लास्ट वन, अब आपके पास एक वेक्टर है ये वाला a plus b plus c plus d और दूसरा वेक्टर है e. These two represent two sides of a triangle in the same order. The third side of the triangle in the opposite order will represent इन दोनों का sum a plus b plus c plus d plus e. ये लिखा है ऑलरेडी. So it means पॉलीगन का रिजल्ट आप प्रूफ कर सकते हैं by using triangular law of factor addition one at a time. Suppose we are having five vectors 1 2 3 4 5, so we will use triangular law 4 टाइम्स. देखो, एक बार यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, चार ट्रायंगल्स है 1 2 3 4, तो चार बार लगाया. तो एक बार a plus b का रिजल्ट आता है, फिर इस रिजल्ट में c जोड़ते हैं तो a plus b plus c आता है, फिर इस रिजल्ट में d जोड़ते हैं तो a plus b plus c plus d आता है, एंड देन फाइनली वी ऐड e टू दिस रिजल्ट. तो a plus b plus c plus d plus e इज इक्वल्स टू द रिजल्टेंट आ जाता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट हुआ. सो इन दिस मैनर वी हैव अंडरस्टूड कि हम वेक्टर एडिशन किस तरह से करते हैं. इसको प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप मेरे साथ एक एग्जांपल सॉल्व कर लें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो. ओके, एक एग्जांपल है हमारे पास. सपोज आई एम हैविंग अ ब्लॉक. I am having a block, okay, और इसका मास है 2 kg. It is placed on a horizontal surface, smooth surface, horizontal surface, और इसके ऊपर दो horizontal directions में फोर्स लग रही हैं. एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर F1, that is 10 न्यूटन्स, और दूसरा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर at an angle of 60 degree and that is 8 newtons. उसको हम नाम दे देते हैं F2. That force is F2. दोनों forces horizontal direction में. It is like this कि एक मेरे पास ब्लॉक है like this. I am having a block. Horizontal surface के ऊपर रखा हुआ है, smooth surface है. एक force इस तरह से लग रही है F1, दूसरी force इधर लग रही है F2. उन दोनों के बीच में डायरेक्शन है 60 डिग्री. ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है दो चीजें आपसे. रिजल्टेंट फोर्स बता दो भैया जी, और अगर कोई मैडम है तो एक्सेलरेशन भी बता दें इस ब्लॉक का क्या होगा. ठीक है, एक्सेलरेशन भी बता दो, रिजल्टेंट फोर्स भी बता दो. ठीक, कैसे बताएंगे रिजल्टेंट फोर्स? देखो, जब भी रिजल्टेंट पूछा जाए, जितने भी वेक्टर्स हैं उनको ऐड करना है, ये मान लीजिएगा हमेशा. नाउ आई एम हैविंग टू वेक्टर्स F1 एंड F2. तो रिजल्टेंट फोर्स I will make use of the formula. दो वेक्टर्स को ऐड करने का फॉर्मूला क्या था? C का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट. यही फॉर्मूला है ना उनकी मैग्नीट्यूड का. तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं F1 और F2. इनका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा, मान लो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री. F1 का मैग्नीट्यूड 10 स्क्वायर, F2 का मैग्नीट्यूड 8 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2. 2 10 जा 20, देखो 2 F1 F2 into cos 60. cos 60 होता है 1/2. तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया. इस 2 से 2 मिल जाएगा, ये 10 8 जा 80 हो गया. ओके, तो 80 plus 64 is 80 plus 64 is 144 plus 100 is 244 न्यूटन्स की फोर्स लग रही है. अच्छा, हमें दोनों डायरेक्शन, दोनों मैग्नीट्यूड ही बताने हैं. बस मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बता दो और मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन बता दो. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया है 244 न्यूटन्स अंडर द रूट. ठीक है, 244 रूट न्यूटन्स आ चुका है.
इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ट्राई करें स्क्वायर रूट इसका निकालने के लिए, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है इसके लिए। नेक्स्ट है कि एक्सेलरेशन भी बताइए। एक्सेलरेशन इट इज सिंपल, 9th क्लास से पढ़कर आए हो, फॉर्मूला होता है F/m या F = ma, 9th क्लास में पढ़ा था ये फॉर्मूला हमने। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, √244, ये तो फोर्स है और मास कितना है 2, ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अपना आंसर लिख लीजिएगा। दिस इज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके, टू ऐड टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। डन। सो स्टूडेंट्स, we have completed our lecture today on the topic of vector addition. Next lecture में हम vector subtraction सीखने वाले हैं। And I hope कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में आपकी कोई भी कमी या कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट बाकी हैं तो आप लेक्चर को एक बार फिर देखें, ये सब क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट, ओके। और साथ में नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते आपके डाउट्स हमेशा रहेंगे, नोट्स बनाएंगे तो डाउट्स क्लियर होंगे। डन। आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंस नेक्स्ट लेक्चर के लिए जरूर है। क्या इंपॉर्टेंस है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन तभी समझ में आएगा जब आपने वेक्टर एडिशन सीखा होगा। वेक्टर एडिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इस लेक्चर को बहुत अच्छे से कर लें स्टूडेंट्स। सो विश टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।